everyone, good morning first of all. Hope you all are doing well and hope you all are safe at your places. Yes, so we have conducted this kind of online sessions because I have got lot many texts about this mind activation. And yes, so as I was having lot of many clients who were waiting for a response, so it was not possible for me to meet them because of this lockdown. I'm extremely sorry for that. एंड एज आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू डैम कि ये टाइम पे हम मिलेंगे ही मिलेंगे. इट वॉज आवर अपॉइंटमेंट बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 इट इज़ नॉट पॉसिबल. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बट आई विल मेक श्योर कि आपके जो भी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स है वो इस तरह इस मीटिंग के ज़रिए मैं आपको आपके ट्रबल्स एंड आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आई कैन मेक श्योर कि इट विल गेट सॉर्टेड. ओके, yes, so I have got okay, let me आपको पहले ये बताना चाहती हूँ. I have one thing to make it clear what is mind activation. First of all, कुछ लोगों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं है because I never upload this kind of things. Okay, so what is mind activation? Mind activation, the word itself says its meaning. Mind activation. You know one thing that reacting to something is not healthy. Responding to something is healthier. Okay, so what is mind activation? The layman, the local, the non-medicals, the people suffering from mental illness who needs mental counseling, the people who don't accept that they are mentally ill, the people who don't partition, one who cannot partition ki how to react, where to react, how to respond, where to respond. Reacting is other thing, a normal or an unhealthy. नॉर्मल और अनहेल्दी दोनों लोग रिएक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, बट एन अनहेल्दी मैन कैन नॉट रिस्पॉन्ड वेल, राइट, just because they have discomfort in their brains. Okay, so what mind activation conveys message is just an counseling, nothing much. It's just an mental counseling. It's just an free energy which reflects your soul, which can diminish your pain and anxiety which is creating trouble in your normal routine life. Just this much. It is our duty कि हम हमारे जो clients होते हैं we just talk. Okay, we just talk regarding their problems. Yeah, so यहाँ हमारे सेशंस में फर्स्ट आई विल आई एम सॉरी कि मुझे जो भी टेक्स्ट्स आए थे मैं उनका 110% आई विल मेक श्योर कि मैं उनका हर एक का आंसर दे ही दूँगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आंसर माई क्लाइंट्स. ओके, so let's start. I have noted down some of the similar questions. You guys just have to make sure कि have आपके आंसर्स दे पाई हूँ कि नहीं मैं, एंड आप बस देख लीजिएगा कि योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड इन दिस थिंग्स और नॉट, which I'm gonna explain you now. And this one question was asked by 7 people, and yes, so let's start our session. Okay, so let's start our session, and the first thing is an negative thought. Okay, now what is negative thought? A negative thought or a pattern or a chain of a negative thought which can disturb your normal routine, right?
Say for example, let's do an exercise, okay? Let's do a mental exercise. Fine. So negative thought. Let's start with me. Let's take me as an example, okay? Okay. I am a college going girl, okay? So in a lecture, a professor insulted me in front of whole class, ओके ये चीज़ें सब लोग ने फेस की होगी. कोई होगा यार बोलता रहता है छोड़ क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके रोज़ का है उसका तो चाँव चाँव काइंड ऑफ, ओके. कोई होता है कोई इस तरह से रिएक्ट करता है, कोई होता है यार इसने मुझे इतनी बेइज्जती कर दी इनके सामने, अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे काइंड ऑफ, ठीक है. सबके पैटर्न्स अलग होते हैं. मैं ऐसी बनती हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली ऑन माई सेल्फ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. इट्स मी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मेरी इंसल्ट हो गई, ठीक है, कि सर ने मुझे डांट दिया, इतना डिसरिस्पेक्ट दे दिया मुझे सबके सामने, क्या अभी ये सब मेरे बारे में बात करेंगे. येस, सो इट्स एन इंसल्ट विच इज़ प्रोवोकिंग माई सेंस, ओके. लेकिन सर टीचर्स या कोई भी अथॉरिटी जिसके सामने हम बोल नहीं सकते, उसके सामने हम क्या कर पाएंगे. वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट गेट एंग्री. हम उनके सामने हमारी भड़ास नहीं निकाल सकते, हम उनके सामने रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनके सामने रिस्पॉन्ड कर सकते. वी आर टोटली हेल्पलेस, राइट. सो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हम कुछ नहीं करते. वी कैन स्टॉप ऑफ आवर बॉडी कि हम जाके चाटा लगा देंगे, वी कैन नॉट डू दैट, राइट. कि हम अपने आप को एज एन फिज़िकल हम खुद को रोक सकते हैं, बट दिमाग वॉट अवर मेंटल सेंस इज़ डूइंग वो नहीं रोक सकते हम. वो तो यही सोचा यार मेरे को इतना इंसल्ट हो गया, इतना इंसल्ट हो गया. एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें जो अंदर अंदर चलती रहती है उसकी वजह से एक सिम्टम मुझे आया, दैट इज़ हेड एक. मुझे इतना ये चीज़ अंदर 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 दिस इंसल्ट 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 इज़ प्रोवोकिंग माई सेंस इतना कि मुझे हेडेक अराइज हुआ, राइट. सो हेडेक फर्स्ट थिंग, पहले मुझे एक नेगेटिव थॉट आया, व्हाट मेरी इंसल्ट कर दी इसने, ऐसा. दैट इज़ अ नेगेटिव थॉट हियर, ओके. लेट्स कीप इट हियर. यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट आया, फिर मुझे हुआ हेडेक, राइट. फर्स्ट थिंग मुझे हुआ हेडेक, ओके. हेडेक क्या करेगा, आपको किसी को होगा बहुत इरिटेट हो जाएंगे, कोई होगा गाली दे देगा, कोई होगा साइलेंट हो जाएगा, कोई होगा जगह छोड़ के चला जाएगा, लाइक अवॉइडिंग द क्राउड, ओके. कोई होगा म्यूज़िक सुन लेगा, कोई होगा दे जस्ट शेयर इट आउट कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा एंड ऑल. ऐसे मतलब सबके रिएक्टिंग चीज़ें अलग होती है, राइट. सो ये हेडेक हुआ. हेडेक के पैटर्न्स हुए कि ये तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया कि आई हैव जस्ट सेड कि किस तरीके से. देन फर्स्ट नेगेटिव थॉट, ओके. सेकंड हेडेक. थर्ड चीज़ क्या होती है, इमोशनल ब्रेकडाउन. Now what is emotional breakdown? Emotions itself is a so wide and beautiful experience, okay. Emotion detaching, एक negative thought, उसके वजह से headache causes irritation causes emotional detaching. ये एग्ज़ाम्पल को लेके हम ले सकते हैं कि मुझे इंसल्ट हुआ, मुझे हेडेक हुआ, उसके वजह से मैं मेरे सर को, टीचर को या मेरे फ्रेंड को या मॉम को या किसी को भी इतना गंदे तरीके से मैं उनके सामने रिएक्ट करूँगी कि आप बात जाने दो, ठीक है. सब हमको हेट करने लगेंगे, राइट. सो नेगेटिव थॉट, हेडेक, emotional detaching is very important part of every human being. Keep this in mind. Emotions are the only thing you get triggered out and you guys
you guys can destroy yourself in emotions, you guys can arise yourself in emotions. So attack on an emotion is the most diminishing thing for an human being. Okay, so third thing is इमोशन. उसके बाद होता है बिहेवियरल चेंज. इमोशन हमारे हर्ट हुए या मुझे ऐसा हो गया, मैं नाराज़ हो गई, अब मुझे गुस्सा भी आएगा, मेरे बिहेवियर में भी चेंज होगा, मैं किसी को भी यूँ करके डांट दूँगी, या मैं कोई मुझे अगर कुछ पूछने आ रहा है तो मैं अवॉइड करूँगी, या कुछ भी, एनीथिंग, एनी बिहेवियरल चेंजेस, राइट. बिहेवियर में चेंज आता है. फिर हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, उसके वजह से नंबर 5 इज़ you get judged by people, right. आप लोगों से जज होना चालू कर देते हो. कैसे? क्योंकि आपके बिहेवियर में चेंज आया, तो लोग देखेंगे कि why is he doing this, yeah, what's wrong with you, are you a kid, why are you doing this, ऐसे ऐसे आपको सब बोलते होंगे, राइट, कि ऐसे क्यों कर रहा है नॉट. सो दैट इज़ एन जजमेंट ऑन द कॉन्ट्ररी, कि यू आर गेटिंग जज्ड कि तू ऐसा क्यों कर रहा है यार. फिर आपके मुंह पे तो इतना ही बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ योर ऐसे फिर ऐसे बोलेंगे कि यार क्या बंदा है, इतनी सी बात को लेके बैठ गया, जा या इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं रहना. सो यू गाइज गेट जज्ड, राइट. दैट इज़ 5th थिंग, judgment. Okay, so 6th thing is due to आप जज्ड हो जाते हो, उसके वजह से आपका जो नॉर्मल प्रेजेंस है उनके साथ दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड. तू कौन होती है भाई मेरे को कुछ बोलने वाली, इट्स माई थिंग, डोंट पोक योर नोज इन माई वर्क, माइंड योर ओन बिजनेस, दैट इज़ मी, हाउ आई रिएक्ट, राइट. सो तुम्हारा रिलेशन उसके साथ गेट्स डिस्टर्ब, राइट. किसी के भी साथ, योर मॉम, योर फ्रेंड, योर कलीग, whomsoever, आपका जो बॉन्डिंग है वो कोप अप नहीं रहेगा, ठीक है. योर पैरेलल सेंस विल गेट डिस्टर्ब. ओके, so that disturbs your normal routine and your relationships. Okay, so that is 6th one. Okay, so उसके वजह से अब मैं घर पे, ठीक है, घर पे आई, मॉम एंड ऑल सब ठीक है, मम्मा के साथ क्यों ऐसा करना, फाइन. सो 7th थिंग इज़ हम हमारा गुस्सा किस तरीके से निकालते हैं. एज एन सेम एज हम हमारा गुस्सा एक चीज़ पे मोस्टली उतारते हैं, शायद मैं तो नहीं उतारती, बट येस ये होता है कि खाना नहीं खाना, राइट, कि मुझे खाना नहीं खाना. फिर मम्मी पूछती है खाना क्यों नहीं खाना, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, बाहर कुछ हुआ है क्या, काइंड ऑफ. यस, सो बैड एपेटाइट, खाना नहीं खाना, जस्ट बिकॉज कि ऐसा थोड़ा सा कुछ हो गया, मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, इसलिए आज एक मील स्किप करती हूँ, भूख लगेगी, अभी भूख नहीं लग रही. this is very normal because some hormones in our brain, ऑक्सीटोसिन है, फिर सेरोटोनिन है, ये सब हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं. वो दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि हमको भूख लगना बंद हो जाता है, हमको अलग बैठना होता है, हमको म्यूज़िक सुनना होता है, हमको किसी से बात नहीं करनी होती है. इट्स जस्ट नॉर्मल, ठीक है. लेकिन उसके वजह से क्या होता है, भूख मर जाती है कि नहीं खाना, दैट इज़ एन बैड एपेटाइट, राइट. अभी कोई लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि स्किपिंग वन मील ऑल्सो कॉजेज एन एसिडिटी, ठीक है, या कुछ भी, एनीथिंग दैट ट्रिगर्स एंड फिजिकल सिम्टम ऑफ एन पेशेंट, कि आपने मील स्किप किया, दैट कैन ट्रिगर योर फिजिकल सिम्टम. ओके, अब फिजिकल सिम्टम आपका ट्रिगर होगा कि मुझे एसिडिटी हुआ जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी मील नहीं लिया, दोपहर का मील मैंने स्किप किया, फिर रात को इतनी तेज़ भूख लग गई कि मैंने ढेर सारा एक साथ में खा लिया, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ेगी. एसिडिटी का फर्स्ट सिम्टम क्या है, क्लिकिंग सिम्टम.
जलन होना एंड हेडेक होना, राइट? अब ये हेडेक गेट्स ट्रिगर्ड, राइट? सो लेट्स टैली द होल चेन. मुझे नेगेटिव थॉट आया, ठीक है, वाई ही इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट क्यों किया. दिस नेगेटिव थॉट, हेडेक हुआ, इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ, बिहेवियरल चेंजेस हुआ, फिर यू गेट जज्ड, देन यू गेट बैड फिर यू गेट जज्ड, फिर आपका जो जजमेंट के वजह से आपका जो रिस्पॉन्ड है या आपका जो रिएक्शन है, रिलेशनशिप ख़राब हुआ. उसके बाद घर आए, घर आने के बाद बैड एपेटाइट, भूख नहीं लगना है नॉल, ठीक है, विच ट्रिगर्स योर फिजिकल सिम्टम, एंड फिजिकल सिम्टम विल अगेन ट्रिगर योर मेंटल हेडेक, विच कैन ट्रिगर योर हेडेक, which causes the mental irritation, right? So you can see कि एक थॉट का जो चेन है वो किस तरीके से पूरा ऐसा चेन फॉर्म करता है. दिस इज़ एन वेरी वेरी स्वीट नॉर्मल, very normal, I can say very very normal example. लेकिन ये चीज़ इफ़ यू टेक इट सीरियसली, अगर कोई लोग होते हैं जो ये चीज़ें क्या बोलती रहती है काइंड ऑफ होते हैं, लेकिन इफ़ यू टेक दिस थिंग्स सीरियसली, ये चीज़ें इतनी अफेक्ट करती हैं नॉर्मल लाइफ जीने में कि यू कैन नॉट इमेजिन. कोई लोग होते हैं, आई एम एब्सोल्युटली नॉट मेकिंग दिस वीडियो, दिस काइंड ऑफ सेशंस फॉर दोज पीपल हु आर मेंटली हेल्दी. अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम हु आर मेंटली हेल्दी. This sessions is for whom who are, I won't say that they are not healthy, it's just they cannot cope up the things, okay? It is just an help to them, okay? So yes, ये चीज़ें जो एक नॉर्मल मैन के रूटीन को हैम्पर कर देती है. आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको ये वेस्ट लगेगा दिस वीडियो, दिस काइंड ऑफ बातें, लेकिन दिस थिंग्स हैम्पर्स वंस life or a day, you can say. And if these things happens every day, that can cause an as a quick reacting human personality. किसी ने अगर क्लास में इतना बाहर कहीं जाके किसी ने उसकी वो जो बोलते हैं दुखती नस पे अगर हाथ रख दिया तो फटक से ऐसे रिएक्ट करेगा ना कि कोई भी सब उसके मज़े लेंगे कि भाई ये तो रिएक्ट करेगा लेकिन कुछ कर तो नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो है ठहरे एकदम हंक लोग, तो हमसे तो ये कुछ पंगे लेगा नहीं. बट वो इंसान अंदर ही अंदर उसके मेंटल सिम्टम्स इतने ट्रिगर हो जाते हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से बहुत बुरी हो जाती है, राइट? सो थिंग्स गोज़ इतनी ख़राब कि उनकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है, उनके बात करने का तरीका ख़राब हो जाता है, उनका अवॉइडिंग सेंस बाहर आने लगता है कि आई वॉन्ट टू अवॉइड एवरीथिंग. मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, और मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाने के पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं. सो सब लोग ऐसा बोलते हैं क्या डिमांड करती रहती, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं खाना, इनसे बात नहीं करनी, वाई आर यू सो मूडी, वाई आर यू सो सिलेक्टिव, कि वाई आर यू सो चूज़ी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना. बट ब्रो, वहाँ क्यों नहीं जाना? 4 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यू आर रिएक्टिंग लाइक दिस? नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि यार हम भी इंसान हैं, हमको भी गुस्सा आता है. उसने रिएक्ट किया, हमने भी रिएक्ट कर दिया, हो गई बात ख़त्म, छोड़ना. दिस इज़ अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, ये होता ही है, आई एक्सेप्ट दिस. लेकिन दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर जाती है दिमाग को, उनके लिए ये चीज़ें नेगेटिव थॉट पर काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है. ओके, सो नेक्स्ट आई विल टेल अबाउट व्हाट
थॉट, उसका पैटर्न, उसका रिलीफ, उसका बिलीफ एंड उसका एटीट्यूड. ओके, यस. ओके, यस. So what is negative thought? Okay, negative thought, sometimes we we all are in a coil of unending negative thoughts. Sometimes we all are in a coil of unending negative thoughts which creates worrying, right? ये चीज़ें बहुत छोटी है, समझने के लिए तो बहुत ही छोटी है, ये बहुत ही छोटा बेसिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है. ठीक है. Sometimes we all are in an unending negative thoughts which is called worrying, right? So I will tell you how to get rid of this worrying or so-called negative thoughts. Okay, number 1, yeah, acknowledge and name of your emotion. Okay, कि name your emotion. What is name your emotion? Say for example, मुझे कुछ हुआ तो I should say यार ऐसा हो गया, या किसी को शेयर कर जाए, यार पता है ऐसा हो गया. क्योंकि से नेम योर इमोशन. मुझे ऐसा हुआ, आई फेल्ट दिस. उसने मुझे ऐसा बोला, उसके वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आई. टेल दिस. ओपन अप योर सेल्फ विथ समवन, और एल्स आई एम तो देयर, मैं आपके लिए ऑलवेज हुई. लेकिन इफ इन केस एट एवरी सिचुएशन आई कैन नॉट बी देयर, उसके वजह से यू कैन हैव सम पर्सन जिसके साथ यू कैन मार्क और नेम योर इमोशन कि मुझे ऐसा हुआ. आई एम वर्रिड बिकॉज ऑफ दिस. नेम योर इमोशन. फर्स्ट थिंग. ओके, yes. Second thing, confirm that you are safe. How? सोचो, हर चीज़ में बता दूँ? ओके, चलो बता देती हूँ. Confirm you are safe. How? नेगेटिव थॉट एंड कंफर्मेशन ऑफ यूर सेफ, क्या रिलेशन है इसके बीच में? क्या बोल सकती हूँ मैं इसके बारे में, बताइए. मुझे तो नहीं पता. ओके, सो मेरे हिसाब से डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग योरसेल्फ सेफ, उसको उसमें से बाहर निकालना नीड्स कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस इज अगेन अ वेरी बिग टर्म. आजकल लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भर के पड़ा है. ठीक है. सो नेगेटिव थॉट को चेक एंड मेट करने के लिए यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस बाय हुक और बाय क्रुक. कॉन्फिडेंस तो मांगता है ब्रो. ठीक है. कॉन्फिडेंस विल मेक यू फील दैट यू आर सेफ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ हुआ यार, देख लेंगे. ये चीज़ें तो बहुत ही बोली होगी आप लोगों ने, लेकिन यस, ऐसे लोग नहीं देख पाते, राइट? ये लोग इतना कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने एंशियस हो जाते हैं, यार क्या होगा, मेरे साथ तो कोई ऐसा है भी नहीं हेल्पिंग हैंड, क्या करूँगी मैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, और आई डोंट हैव अ वे आउट ऑफ दिस.
तो मैं कैसे, हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल, राइट? सो ये चीज़ उनको डिमिनिश कर देती है, उनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना है, ये अगर आपका क्वेश्चन है, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? फॉर नाउ दिस, नाउ थर्ड थिंग, the third point is reframe your negative thought. A huge thing I'm saying, reframe your negative thought. reframe करो उसको। कैसे कैसे हो सकता है ये? ओके, मुझे इंसल्ट हुआ, यू रिमेंबर, मैंने कहा था इंसल्ट, हेडेक, फिर ऐसा ऐसा पूरा चेन, राइट? सो मुझे इंसल्ट हुआ, रिफ्रेम करो, यार मेरी इंसल्ट इसमें हुई थी कि नहीं हुई थी, किसके सामने हुई थी? यार मेरे दोस्त ही तो थे, और दोस्तों की कौन सी इज्जत है मेरे सामने, और मेरी कौन सी इज्जत है दोस्तों के सामने? उनके सामने बेइज्जती हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? कि क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोस्तों के सामने अगर दो चार इंसल्टिंग वर्ड्स हम सुन भी ले तो। लेकिन ये हमारे लिए ऐसा है, वो लोगों के लिए ऐसा होता है कि यार इनके सामने भी हम डिमिनिश नहीं हो सकते, मेरी रिस्पेक्ट और मेरा जो एज एन होल मैं हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसको बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसी पर्सनालिटी के लिए, ठीक है? लेकिन आई मस्ट से रिफ्रेम इट, कि उस जगह पे ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो एक्चुअली हैम्पर करने के लायक है कि नहीं, कि मुझे हेडेक हुआ, वो चीज़ डिज़र्व करती है मेरा हेडेक। It's so stupid, it sounds so stupid, right? But it works, guys, it works, okay? So उसका वो जो हुआ था, मेरा इंसल्ट हुआ था, वो इंसल्ट इतना बड़ा था कि वो मेरा हेडेक डिज़र्व करती है। मेरी इंसल्ट का कद या बॉडी इतना बड़ा था कि वो मेरा मेंटल पीस ले सकती है। इज इट? यस और नो? लेट मी नो, ओके? सो what? Go and check. Okay, हो गया चेक? नाउ नेक्स्ट थिंग इज थॉट तो आ गया, इंसल्ट तो हो गई, हेडेक तो हो गया, दिन भी ख़राब हो गया, लोगों के साथ रिलेशन भी ख़राब हो गए, एसिडिटी भी हो गई, खाना भी नहीं खाया, हेडेक ट्रिगर भी हो गया, दूसरा दिन भी चालू हो गया, हेडेक अभी भी है। थॉट, उसका क्या करे यार, क्या करे, कैसे करे, किसके साथ शेयर करे? यस, राइट। So what I did? Question yourself. क्यों यार, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? Question yourself. किसके ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? Do that person deserves your mental calmness? आपका मेंटल कामनेस वो लेके जा सकता है? डू दैट पर्सन डिजर्व्स? क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके? अब शेयर किससे करो यार, मैं शेयर किससे करूँ? या इसको कर सकते हो, लेट मी कॉल हर, ओके? मेक अ कॉल, मेक अ स्टार्ट, टेक इनिशिएटिव, बात करो, कम्युनिकेट। नाउ हेल्दी शेयरिंग,
Now, what is healthy sharing? Let me read something for you. Okay, so what is healthy sharing? कम्युनिकेशन से बात या तो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। हेल्दी कम्युनिकेशन, गौर करना बातों को, मैं जो बोल रही हूँ। कम्युनिकेशन से या तो बातें सॉल्व हो जाती है या तो इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट में जगह चली जाती है। हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो हमको ये पता चलेगा कि ये कितना मेरे दोस्ती में या मेरे एज एन पर्सन मेरे में कितना इन्वॉल्व है यार, मतलब उसमें ही सपोर्टेड मी, यस। तो वो इंसान बहुत बहुत बढ़िया बन जाता है यार हमारे लिए। एंड या तो हमको ये पता चल जाता है यार हम लोग ने फालतू में फिजूल में उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसकी जगह बना रखी थी, ही डोंट डिज़र्व, सो वो चीज़ वहीं क्लियर हो जाती है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में जगह वहाँ बने रखनी है या प्रायोरिटी लिस्ट में से वो इंसान को निकाल देना है। दिस यू कैन मेक इट जस्ट आफ्टर कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन से सारे अच्छे लगेंगे भाई। आप किसी से भी बात करो, क्यों 5 मिनट बात करने से वो अपनी इम्प्रेशन ख़राब करेगा किसी के सामने? सब अच्छे से बात करते हैं फॉर 5 मिनट्स 5 डेज़। इफ़ वी गो समवेयर, हम किसी के साथ जाते हैं 5 दिन तक अगर साथ में रहना है तो सब अच्छे से ही रहेंगे। इफ़ यू डोंट कम्युनिकेट, इफ़ यू डोंट गेट इनटू थिंग्स, इफ़ यू डोंट गेट इनटू अ पर्सन एंड देयर थॉट्स, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान आपके इनटू है कि नहीं, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में डिज़र्व करता है कि नहीं। सो कम्युनिकेट, ओके। सो कम्युनिकेटिंग इज़ वन थिंग, आई मस्ट से, फिर से गौर करिएगा। कम्युनिकेटिंग इज़ वन थिंग बट your tone, communicating is good, it is a one thing, okay, but your tone while communicating is everything. Communicating is a one thing but your tone while communicating is everything, right? So ये जो चेन पूरा चल रहा है ना, नेगेटिव थॉट, हेडेक, बिहेवियरल चेंज, एपेटाइट, जजमेंट, ट्रिगर ऑफ हेडेक, फिर थॉट आना, थॉट को कैसे कंट्रोल करना, कम्युनिकेट करना, हेल्दी शेयरिंग करना, ये सब चीज़ें एक इतनी बड़ी है ना वो इंसान के लिए कि ये चीज़ें भी उसको लोड लगने लगती है कि यार मैं कैसे करूँगा। दोस्त पर्सनालिटी जो लोग नहीं कर सकते ये सब कोप अप, ये सब चीज़ें वो लोग नहीं संभाल सकते, छोटी से छोटी चीज़ें उनको टू मच लगती है। लाइक मेरी लाइफ में पहाड़ टूट पड़ा, आई कैन नॉट सर्वाइव। इतना आई हैव सीन सम पेशेंट्स कि उनको कुछ चीज़ें फैमिली प्रॉब्लम्स इतना ट्रिगर कर जाती है, या तो दे वांट कि वो खुद मर जाए या हार्म करे खुद को, या तो वो लोगों से दूर हो जाए। सी, सो दिस आर पर्सनैलिटीज, यस, ओके। सो एक्सेप्ट दैट, वर्क ऑन दैट, कम्युनिकेट, healthy communicate, mind your tone, select a person, talk with them, share with them, confirm yourself that you are safe, confidence, and reframe your negative thought. ये सब चीज़ें पैटर्न वाइज करोगे then I am damn sure कि आपका जो सो कॉल्ड नेगेटिव थॉट है ना चेक एंड मेट हो जाएगा, ओके। सो कुछ चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी यार, लाइक इट इज़ आउट ऑफ योर हैंड्स,
वी कैन से ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, जस्ट आउट ऑफ माई हैंड्स, आई कैन नॉट डील विद दैट. If your mind or if your mouth is saying कि it's not my cup of tea, it's out of my hands, I cannot bear, तो एक चीज़ अगर ये हम फिजिकली बोल रहे हैं तो it deserves a freedom from your mind also ना. If it is out of your hands, then it deserves a freedom from your mind too. If things are out of your hands, then it should have a freedom from your mind too. तुम्हारे दिमाग ने क्या गुनाह किया है? कुछ नहीं ना. Yes, so think. एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप ऐसा सोचो कि सीरियसली यार इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, देन वाई द हेल आई एम इतना क्यों सोच रही हो? वाई द हेल आई एम क्यों इतना मेंटल पीस मेरा जा रहा है इसकी वजह से? वाई? आस्क योरसेल्फ. यस, क्वेश्चन योरसेल्फ. Question yourself. I repeat, question yourself. Yes? कर लिया क्वेश्चन? Now the question arise कि ये बंदी क्या बोल रही है यार. What question arises? हम थॉट्स को कैसे रोके? वो हमारे हाथ में है क्या? थॉट्स को रोकना हमारे हाथ में तो है नहीं, दिमाग तो हमारे हाथ में नहीं है. अब बंदी ने ऐसा बोला कि हमने फिज़िकली तो रोक लिया, भाई उसको थप्पड़ नहीं मारा जाके क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में था तो मैंने नहीं मारा. अब दिमाग में है थॉट्स, अब दिमाग कहाँ है नहीं पता. दिमाग के थॉट्स को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते. हाउ टू कंट्रोल अ थॉट? सोचिए सोचिए. How to control your thoughts? Okay, so change first. CHANGE, change. अब लोग यूँ कहेंगे कि हम किसी के लिए नहीं बदलेंगे. This is me, who am I? हम खुद के दिमाग को, खुद के थॉट्स को क्यों चेंज करें किसी के लिए, राइट? Very good, absolutely great if you think so. If you have such attitude, it's hats off. It's very good. It's perfectly good. Then you are normal. I'm not talking about you. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना ऐसा नहीं सोचते हैं. एंड इफ सोचते हैं तो डोंट मेक सच थिंग्स सो स्टक्ड इन योर ब्रेन्स कि फर्दर ऑकरेंस में वो फियर बन जाए. नाउ फियर, अनदर बिग टर्म, फियर, राइट? ओके, डोंट मेक सच थिंग्स सो स्टक्ड इन योर माइंड कि वो फर्दर ऑकरेंस में फियर बन जाए. हमको चेंज नहीं होना, फिर फियर हो जाएगा ना. क्यों? कैसे होगा? यार ये करना चाहिए था, नहीं कर पाई, छोड़ना यार, मैं क्यों करूँ. लेकिन बैक ऑफ तू हम हमारे एटीट्यूड में तो बोलते थे यार छोड़ना नहीं करना है यार, हम मैं क्यों बदलूँ किसी के लिए खुद को. लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड इट इज़ देयर कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए थी. इफ़ आई हैव डन दिस, इफ़ आई वुड हैव डन दिस, तो मुझे ये चीज़ मिल जाती. उसका क्या? फियर, डर क्रिएट होता है इसके वजह से. यू नो दिस, माइट हैव नॉट नोन दिस. फिर आपका दिमाग डरता है चीज़ों से. यू नो दैट. एक्सेप्ट दिस थिंग. यस, दिस हैपन्स. डर बनता है, एड्रेनालिन रश होता है. दिस
happens. डर बनता है. हम नहीं बदलेंगे किसी के लिए. उसके बाद आप देखना 1 महीने बाद स्टैमरिंग होगी स्पीच में ब्रो, ट्रेमल्स आएंगे हाथ में, क्राउड को फेस करने में डर लगेगा, पापा के सामने जाके 2 चीज़ें बोलने में भी डर लगेगा. These things happens. Accept this. वेब सीरीज में दिखाते यार you should not change yourself. Yes, nice, that is very good. I'm not saying ये सब चीज़ें गलत है. Yes, that is good. But एक लिमिट तक. आप change is must. You have heard this ना? Change is must. ऐसे ही नहीं कहा जाता है change is must. Your mental state have to suffer from this. आपकी ये फिजिकल एटीट्यूड के वजह से आपको आपका मेंटल पीस चला जाता है कि मैं नहीं करूँगी, मैं खुद को नहीं चेंज करूँगी. ये चीज़ जो बैठ गई है ना, उसकी वजह से आपका दिमाग डर रहा है कुछ चीज़ करने के लिए. एंड नाउ व्हाट इज़ फियर? फियर is just a trap created by destiny to test your desires. Fear, दिमाग को डर लग रहा है. Now what is fear? हम उसमें से कैसे निकले अब? Right? Fear is just a trap created by destiny to test your desire. Fear is just a trap. Okay, it's just a trap है वो, created by destiny. We don't know. It's just a trap created by destiny to test your desire. Okay, so fear. Don't fear to change. हम नहीं change होंगे. That is your attitude saying हम नहीं change होंगे. That is not, absolutely not your mental state. Was saying कि हम नहीं बदलेंगे. This is your physical attitude saying कि हम नहीं change होंगे. आपके दिमाग की शांति को उसमें बीच में मत घसीटो. आपके एटीट्यूड के वजह से आपके दिमाग की शांति को उसमें बीच में मत घसीटो. ये ज़्यादा ज़रूरी है इससे. आपका फिजिकल स्टेट से ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल स्टेट. राइट? प्लीज़ डोंट हार्म योर मेंटल स्टेट जस्ट बिकॉज ए क्राउडी एंड अट्रैक्टिव एटीट्यूड के लिए. डोंट हार्म योर सॉफ्ट एंड स्वीट मेंटल स्टेट, प्लीज़. Okay? Yes. So, as we know, we suffer more in imagination than in reality. इसलिए मैं बोल रही हूँ. We suffer more in imagination than in reality. जो रियलिटी हो रही है उससे ज़्यादा हम इमेजिनेशन में इतना सफ़र कर चुके होते हैं कि आप बात जाने दो, चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है इमेजिनेशन में. राइट? प्लीज़ थोड़ा रहम करो अपने दिमाग पे. Now the cycle goes on where the primary cause of unhappiness is never changing attitude. The primary cause of unhappiness is never changing attitude and never adapting the situation and having an thoughts negative to it. Okay? Prime cause of unhappiness is never changing attitude and never accepting the situation and negative thought to that. So वो नेगेटिव थॉट वाली बातें एंड इतना लंबा लेक्चर आके कहाँ रुका? चेंज. ओके,
एटीट्यूड. यस. ओके. सो हम ऐसा भी बोलते हैं कि टाइम सब ठीक कर देगा यार, टाइम हील्स. यस. बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि टाइम हील्स. यस. इज इट एक्चुअली सो? कैन यू इलैबोरेट? आप कोई मुझे बता सकते हैं हाउ टाइम हील्स? I can say how time heals, or actually time heals or not. I can say how. Bro, time doesn't heal anything. Acceptance heals everything. Time doesn't heal everything. Acceptance heal everything. It is just us who takes time to accept situation. It is us who takes time to accept situations. The credit to time is not valid. Credit is us. Change in your thought process can lead to and happy life, happy thoughts. So next question is happiness and stress. We can carry forward in next video. So till that I will just say कि thought, आपका जो thought है उसको कंट्रोल करिए, रिफ्रेम करिए, कॉन्फिडेंस लाइए. कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन, इफ़ यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज़ लेट मी नो. फिर रिफ्रेम द क्वेश्चन इज मस्ट. ओके. Don't let this kind of things hamper your sweetest emotion, that is love, that is communication. आपका बात करने का तरीका ख़राब नहीं होना चाहिए. you are in sweetheart. आप इतने अच्छे हो, सब इंसान अच्छे होते हैं, ठीक है. आप इतने अच्छे हो तो आपका बात करने का तरीका हैम्पर हो, वहाँ तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए. राइट. सो अगेन टेक योर टाइम, व्यू ऑल वीडियोज़, अगेन सब टैली करो, को रिलेटेड. इट इज़ माई थिंग कि मैं आपको कुछ चीज़ें एक पिन पॉइंट करके दूँ कि मतलब आई वॉन्ट फर्स्ट आई सेड कि लेट्स डू एन एक्सरसाइज. ठीक है. सो आपको ये भी लगा होगा कि चीज़ें क्लियर तो नहीं की है इन्होंने, ये सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं किया, आधी चीज़ें छोड़ दी है, कुछ समझा के छोड़ दिया है. ठीक है. कुछ समझा के छोड़ दिया है वो इसलिए बिकॉज दिस इज़ एन एक्सरसाइज. आई वॉन्ट कि आपका दिमाग काम करे. आई वॉन्ट कि आपका दिमाग ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो. आई वॉन्ट कि आप लोग इस पे सोच के मुझे बताएं कि ये चीज़ पे आपका क्या फ्रेमवर्क है. ठीक है. सोचो, फिर से वीडियो देखो, फिर से क्वेश्चन है तो पूछो, फील फ्री. ओके. और स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल एंड आपके दिमाग को मस्त मगन में रहने दो. ठीक है. बाय.